Good morning, everyone. So today we are going to start first chapter of Business Studies, class 11th, Nature and Purpose of Business. So let's start with the introduction of the chapter. All human beings, wherever they are required to perform some or other activities to satisfy their needs. They pursue different occupations to earn a livelihood and to get some physiological satisfaction. Activities which are human being undertake are known as human activities. Some of these activities are undertaken to earn money, but other are performed to drive personal satisfaction. On the basis of this, activities can be broadly categorized as human activities, non-economic activities, and economic activities. Non-economic activities are those activities which are being performed not to earn money or any monetary gain, but to get some satisfaction, either it is religious or social or any other. And economic activities are profession, business, and employment. They are business, profession, and employment. Business includes trade, industry, banking, transportation, insurance, warehousing, and advertising, etc. Professions such as medical, legal, and chartered accountant. Employment, manager, clerk और सेल्स पर्सन. तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें बिजनेस में क्या होता है, वी इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट. कोई हाईली एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. प्रोफेशन मीन्स व्हेन अ पर्सन इज हैविंग सम एक्स्ट्रा और स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, उसे प्रोफेशन बोलते हैं. कोई पेशेंट है, बीमार है, डॉक्टर को विजिट करेगा. डॉक्टर अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेस पे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे एंड दे विल चार्ज फीस. दैट इज़ प्रोफेशन. एम्प्लॉयमेंट व्हेन वी हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम वन एल्स हु विल बी पेइंग मनी इन ऑन मंथली बेसिस और क्वार्टरली, वट एवर द एग्रीमेंट इज़, तो उसे कहते हैं आप एम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हु इज़ वर्किंग इन अ स्कूल, तो दे गेट सैलरी फ्रॉम द स्कूल. दिस इज़ द एम्प्लॉयमेंट. How the economic activities and non-economic activities are different. First one is motive. Economic activities are performed to earn money or creation of wealth, while non-economic are social or psychological motive. Expectations. When we are involved in economic activities, we accept money or monetary benefit from that, but for non-economic, we do not accept money for that, expect money. Purpose, that is creation of wealth, and that is satisfaction for non-economic. Outcome of economic activity is a production of goods or services, while for non-economic activity it is the mental and personal satisfaction. Example, business, profession, and employment we have already discussed, and for non-economic it is social service, religious service, etc. Comparison of business, profession, and employment. Mode of establishment, entrepreneur's decision and other legal formalities if necessary. किसी ने डिसाइड किया उसे बिजनेस करना है तो दे हैव टू डू. प्रोफेशनल मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. फॉर एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट. नेचर ऑफ वर्क, प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. फॉर प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, जैसे डॉक्टर हर मरीज के लिए अलग दवाइयाँ देता है. एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, वट एवर इट इज़. क्वालिफिकेशन फॉर बिजनेस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज इट इज़. प्रोफेशनल के लिए एक्सपर्टीज़ एंड ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड. एम्प्लॉयमेंट के लिए डिज़ायर्ड और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉयर ने फिक्स की है या गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वो ज़रूरी होती है. रिवॉर्ड, फॉर बिजनेस इट इज़ प्रॉफिट, फॉर प्रोफेशन इट इज़ फीस, फॉर एम्प्लॉयमेंट इट इज़ वेजेस. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है क्योंकि बिजनेस बनाना है आपको, रिक्वायरमेंट है. प्रोफेशन के लिए लिमिटेड कैपिटल है अपना, जो जहाँ पे आप बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे सिर्फ उसके लिए. और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सैलरी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है. रिस्क, बिजनेस जो है उसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क होता है. प्रोफेशन में कम रिस्क है
और एम्प्लॉयमेंट में कोई ख़ास रिस्क है ही नहीं, वी कैन से ज़ीरो रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस में पॉसिबिलिटी है फॉर्मेलिटीज़ के साथ कि आप अपना रिस्क, अपना बिजनेस, अपनी कंपनी किसी को दे दें। प्रोफेशन में आप अपनी डिग्री किसी को नहीं दे सकते, और जॉब में भी सेम कंडीशन है, आपकी जगह कोई और काम नहीं कर सकता। कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस के लिए कोई प्रेस्क्राइब नहीं होता है, प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल एथिक्स और जो बॉडी है जिससे आप एफिलिएट हैं उसका कंडक्ट। और एम्प्लॉयमेंट में जो नॉर्म्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब उसमें शामिल हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के? देर आर ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल, ये तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वालिटी गुड्स, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, इको फ्रेंडली टेक्निक्स हों जिससे एटमॉस्फेयर ख़राब ना हो, और पब्लिक का वेलफेयर। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी सर्टेन चीज़ें हैं। गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर आपके कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर और कंडीशन अच्छी हो, हज़ार्डस ना हो, हार्मफुल ना है। सेकेंड वन इज़ रीजनेबल सैलरी और वेजेस, वी कैन से कंपनसेशन। तो जो भी एम्प्लॉई आपके साथ हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उनको आप एक अच्छी सैलरी दें जिसमें वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दे रेस्पेक्ट मस्ट बी गिवन टू ऑल। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ना हो जाएं कि भाई आप उनके फ्यूचर के लिए या उनके फैमिली के लिए कोई प्लानिंग ना करते हो, इट इज़ मस्ट। एंड जॉब सिक्योरिटी, जब आदमी कहीं एम्प्लॉई है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जॉब सिक्योरिटी, तभी वो मेंटली पीस के साथ जॉब कर पाएगा, अदरवाइज़ वो परेशान रहेगा।